Hello everyone, a very good afternoon. So let us continue our discussion. Last lecture में हमने क्या किया था? We had started seeing the methods to solve a trigonometric equation. ठीक है? This is what we had started. इससे पहले what is a trigonometric equation? या फिर how to solve, what are the solutions of the standard trigonometric equation like sin theta equals to sin alpha, cos theta equals to cos alpha and so on. ये सब हम trigonometric functions में already discuss कर चुके थे. ठीक है? So what we are basically seeing in this chapter is how to solve a trigonometric equation, different ways in which a trigonometric equation can be solved. कल हमने क्या देखा था? We saw if we have a trigonometric equation of the form a cos theta plus b sin theta equals to c, तो हम इस equation का solution कैसे निकालेंगे? ये हमने कल के लेक्चर में देखा. We know this equation will have a solution only when c is less than or equals to under root a square plus b square. ऐसा नहीं है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं होगा. वी सो हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, और इसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. नाउ इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोना सी इज वी आर गोना सी सम अदर मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. बट बिफोर सॉल्विंग दैट, we were demonstrating that I want you to take care of some special points while solving a trigonometric equation. मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा टॉपिक है, स्कोरिंग है, इजी भी है, बट मिस्टेक्स और स्पेशली सिली मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ही ज्यादा है, जिनके कारण आपकी इक्वेशन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी और एक मिस्टेक के कारण आपका आंसर गलत आएगा एंड यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स. नॉट गेनिंग बट यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स प्लस टाइम. दैट इज एन अदर पॉइंट. ओके, सो और मैंने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो उसे सेटिस्फाई करेंगे. सो हमें कुछ ऐसा तरीका भी चाहिएगा जिससे हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए. ट्रू. सो अभी जो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ और ऐसे सम कॉर्नर केसेस which you should always take into consideration while solving a question, or some mistakes which you might end up committing while solving a trigonometric equation. So इन steps के through मैं आपको कुछ special points बताना चाहती हूँ which you should always keep into consideration. These are the thumb rules to solve a trigonometric equation. Okay? और यही आपको objectives में भी options eliminate करने में कहीं बार help करेंगे. So the first rule is, what you should do is you should avoid squaring a trigonometric equation. इससे मैं ये कहना चाहती हूं इस पॉइंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो जहां तक कोशिश हो सके, as far as possible you should not square a trigonometric equation. For example, let me show you an option. Let us say I have a trigonometric equation sin theta equals to 1. Okay, so what is the solution of this equation? It is sin theta equals to sin pi by 2. So theta is n pi plus minus 1 to the power n pi by 2. और इसके solutions क्या होने वाले हैं? I know it is going to be pi by 2, 5 pi by 2, फिर क्या होगा? एक तो pi by 2, एक 5 pi by 2, then it is going to be 9 pi by 2 and so on. Do we agree to this point? Now, instead of this अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? sin square theta equals to 1, or I can write it as 1 minus sin square theta equals to 1, or I'll say equals to 0, or I'll say cos square theta equals to 0. cos square theta equals to 0 का solution क्या होगा? It is going to be 2n pi प्लस माइनस पाई बाय 2. परफेक्ट. सो यहां से हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशंस में? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. बट व्हाट वी आर सीइंग इज इन दोनों सॉल्यूशंस में कुछ वैल्यूज एक्स्ट्रा है. तो जब हमने स्क्वायर कर दिया यहां पे तो हमने ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज इंक्लूड कर दी, विच वी नो 3 पाई बाय 2 इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई दिस सोल्यूशन.
7 पाई बाई 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, बट क्योंकि हमने स्क्वायर करा, सो दिस वाज अ मिस्टेक विच वी कमिटेड एंड बिकॉज ऑफ विच वी इनकॉर्पोरेटेड सम more extra solutions in the equation. Getting it? So this is a step which we should always avoid. आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर करने से हमने क्या किया? बेसिकली स्क्वायर करने से हमने इस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म पे के साइन को मैटर नहीं रखा. हमने कहा कि बस साइन थीटा का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, हम उसकी डायरेक्शन को मैटर नहीं करते. बट इट इज नॉट ट्रू. वी आर इवन इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ साइन थीटा. सो स्क्वेयरिंग इज समथिंग दैट शुड बी strictly avoided. True? Now, second thing that you should always take into consideration is never ever cancel unknown terms on both sides of the equation. So, never cancel unknown terms on both sides of the equation. True? For example, let us say मेरे पास एक इक्वेशन है cos x into sin x equals to cos x. Okay, what I will do is usually मैं सबसे पहले यहाँ से cos x cancel कर दूंगी because I am seeing this can be easily cancelled and I'll write sin x equals to 1 and I'll give solution as n pi plus minus 1 to the power n pi by 2. But is this the only solution for this equation? इस तरीके से cancel करके हमने एक solution को eliminate कर दिया. that is, देखिए इस equation को solve करने का सही तरीका होता cos x into sin x minus cos x equals to 0. ठीक है, फिर हम लिखते cos x into sin x minus 1 should be equals to 0. Then what we should do is either cos x is 0 or sin x is 1. अब यहां से एक्चुअल सॉल्यूशंस आते हैं. अब देखिए sin x equals to 1 से हमें क्या सॉल्यूशंस मिलने वाले थे? पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, सॉरी 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. अब sin x equals to 1 से तो यही सॉल्यूशंस मिलते हैं और cos x equals to 0 से क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं? एडिशन में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. सो बेसिकली जब हमने इस अननोन टर्म cos x को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो हमने ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2 ये वाले सॉल्यूशंस को इग्नोर कर दिया. सो जब हमने अननोन टर्म्स को कैंसिल किया तो हमने कुछ सॉल्यूशंस को अवॉइड कर दिया. जब हमने स्क्वायर किया था तो हमने कुछ अननोन सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया था. बट अब हमने क्या किया, इस वक्त हमने कैंसिल करके कुछ सॉल्यूशंस को अपने आप ही अवॉइड कर दिया, विच इज इवन नॉट अ करेक्ट वे. ट्रू. थर्ड, we should consider the range in which terms can be infinite or undefined. हमें ये भी देखना चाहिए कि किस रेंज में हमारी टर्म्स अनडिफाइंड हो जाती है या फिर इनफाइनाइट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल टेक कंसिडर अ सोल्यूशन sin x अपॉन cos x इंटू cos 3x by 2 equals to 0. अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मैं क्या लिख दूंगी, मैं तो I will write this, the solution would be sin x equals to 0, which means x should be equals to n pi. Perfect. I'll write this as a solution. But
अब हमें क्या देखना है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट साइन एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस 3x बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो मुझे वो कंडीशंस भी कंसिडर करनी पड़ेगी जब cos x 0 हो या फिर cos 3x बाई 2 0 हो। आई शुड नॉट राइट दिस एज cos x क्योंकि ओके जब cos x 0 हो, जब cos 3x बाई 2 भी 0 हो, वो कंडीशंस हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। इसमें से cos x कब 0 होता है, when x is odd multiple of pi by 2, so x equals to 2n plus 1 pi by 2 वाली कंडीशंस हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ओके और दूसरा cos x 3x pi by 2, so when 3x by 2 is even a odd multiple of pi by 2, ये कंडीशंस भी हमें एलिमिनेट यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमें कंडीशंस मिलने वाली हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ओके यहाँ से वील गेट 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, वील गेट, यहाँ से अब हमें कुछ कंडीशंस मिलेगी। देखिए वील गेट पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, देन 3 पाई बाई 3, sorry, we'll get 2n plus 1 pi by 3. So one is going to be pi by 3, then it is going to be pi, because it is going to be 3 pi upon pi by 3 which is going to be pi, then it is going to be 5 pi by 3, 7 pi by 3 and so on। तो अब देखिए पाई यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो पाई और पाई को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। सो पाई इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि जैसे ही x पाई होगा तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड हेंस इट वुड बी नॉट डिफाइंड। ट्रू। सिमिलरली डू यू रिमेंबर हमने एक और इक्वेशन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सॉल्व की थी, हमने लिखा था tan 3x माइनस tan 2x अपॉन tan 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल्स टू 1। और यहां से हमें क्या मिल गया था, tan x इक्वल्स टू 1 विच मीन्स x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। बट वी एलिमिनेटेड दिस कंप्लीट सोल्यूशन बिकॉज यहां से क्या मिला था, x एज n पाई प्लस पाई बाय 4 विच मीन्स 2x इज गोइंग टू बी n पाई 2n पाई प्लस पाई बाय 2 एंड आई नो tan 2x will be not defined at such place, it is going to be infinite, so n pi plus pi by 4 इसका solution नहीं होगा, इसलिए इस equation का कोई भी solution नहीं होगा, null set इस equation का solution होगा। Remember this question, so यही point है कि हमें ये भी check करना है कि किस इन solutions पे कहीं हमारी कुछ terms not defined या infinite तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उस solution को भी eliminate करना है। True? Fourth is we should take care of the domain. Take care of the domain of the equation. Never play around with it and never change the domain of the equation. So I'll more specifically point as never change the domain of the equation. And the last point which I want you to take care of is take care of 0 in denominator. Actually third और fifth point almost same ही है कि कुछ वैल्यूज अनडिफाइंड ना हो जाए, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में 0 गए तो पूरी इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स। एंड फोर्थ पॉइंट हमें ये भी चेक करना है कि डिनोमिनेटर में डोमेन्स चेंज ना हो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो हमें उस डोमेन को भी स्पेशली पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में रखना है। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई वांट यू टू टेक केयर। और आप देखिए इन सब पॉइंट्स की हेल्प से आप काफी ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव में भी एलिमिनेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
हम उन ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे जहां पे हमारी कुछ टर्म्स अनडिफाइंड हो रही है या फिर कुछ टर्म्स इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है। हम उन ऑप्शंस को भी कैंसिल कर देंगे जो हम जानते हैं जिनमें कुछ सॉल्यूशंस कम है टर्म्स कैंसिल होने के बाद। दीज आर सम ट्रिक पॉइंट्स। अभी नाउ व्हाट वी नो इज कि कुछ कैचेस जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो कैचेस क्या होंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को और जल्दी और accurately solve कर पाएंगे, precisely and accurately. Okay, now let us see the next type of equation. First equation थी of the form a cos theta plus b sin theta equals to c. अब the next type of equation which I want you to solve is of the form a naught cos theta, a naught sin theta to the power n plus a1 sin theta to the power n minus 1 into cos theta plus a2 sin theta to the power n minus 2 into cos theta square till a n minus 1 sin theta into cos theta to the power n minus 1 and the last is a n into cos theta to the power n equals to 0. So this is a second type of different trigonometric equation जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन तो इन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द पैटर्न इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या पैटर्न है जल्दी से बता दीजिए। सी इज दिस एन होमोजेनियस इक्वेशन। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के जो एक्सपोनेंट्स है उनका एडिशन हमेशा n है, कांस्टेंट है। साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंट है 0, सो इट इज n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n और यहाँ पे इट इज अगेन n। सो साइन थीटा और कॉस थीटा के जो एक्सपोनेंट्स है हर इक्वेशन में हर पार्ट में उनका समेशन कांस्टेंट है, इट इज n। सो इस तरीके की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। नाउ in order to solve such equation what we usually do is we take care of the case when cos theta is not equals to 0 और हम इस पूरी इक्वेशन को cos theta to the power n से डिवाइड कर देते हैं। so moment and divide by cos theta to the power n considering the cases when cos theta is not equals to 0 and when ऐसे क्या होगा equation will be something of the form a naught tan theta to the power n plus a1 tan theta to the power n minus 1 till an equals to 0। इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी शुड डू इज वी शुड सब्स्टिट्यूट tan theta equals to t। so we are left with a naught t to the power n plus a1 t to the power n minus 1 a2 t to the power n minus 2 till an equals to। so now we have got a polynomial function in t और हम जानते हैं कि इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से हमें t की वैल्यूज मिल जाएगी। हम देखेंगे कि कौन से वैल्यूज डिफाइंड है कौन सी नहीं डिफाइंड है, विच कुड बी एक्सेप्टेड विच कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो तरीका समझ में आया सॉल्व करने का। इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि cos थीटा 0 ना हो और पूरी इक्वेशन को cos थीटा टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। सो इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी। व्हाट वी विल गेट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। फॉर अ सिंप्लिसिटी सेक वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट tan थीटा बाय t। तो अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया t में और यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। ट्रू। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा इलस्ट्रेशन इस कॉन्सेप्ट में। ओके क्वेश्चन लिखिए। See, write down the question. We have to solve a trigonometric equation of the form 5 sin square x minus 7 sin x cos x
plus 16 cos square x equals to 4. So equation is 5 sin square x minus 7 sin x cos x plus 16 cos square x equals to 4. ठीक है, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो फर्स्ट वी शुड सी कि ये इस टाइप की इक्वेशन में फॉल करती भी है कि नहीं. नाउ व्हाट वी नो इज sin x और cos x के एक्सपोनेंशियल का टर्म है यहाँ पे 2, अगेन 2 एंड अगेन 2. सो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin x एंड cos x. सो हम उसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? इट इज a0 sin to the power sin theta to the power n plus a1 sin theta to the power n minus 1 into cos theta and so on equals to 0. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म 4 है इंस्टेड ऑफ 0. तो अब कैसे सॉल्व करो, हाउ टू प्रोसीड अबाउट दिस? लेट अस डू वन थिंग. मैं इस 4 को क्या लिख सकती हूँ, 4 into 1. I can very safely write this as 4 into 1 and I know 1 is what? Cos square theta plus sin square theta. So मैं इसे लिख सकती हूँ 4 cos square theta plus 4 sin square theta. True? So now I got an equation 5 sin square x minus 7 sin x cos x plus 16 cos square x equals to 4 cos square x plus 4 sin square x. Or let us write this equation as sin square x minus 7 sin x cos x plus 12 cos square x equals to 0. So now this equation has reduced into this standard form. Clear? Any doubt? Now, what is the next step? Considering cos x is not equal to 0, we divide this complete equation by cos square x. So what I am left with is tan square x minus 7 tan x plus 12 equals to 0. Now let us substitute tan x as t, और let us not even substitute it, हम tan x के टर्म्स में ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. So I can write this equation as tan x minus 4 into tan x minus 3 equals to 0. So what do I get is either tan x equals to 4 or tan x is equals to 3, which means x is either tan inverse 4 or x is tan inverse 3. Clear है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया? So I hope everyone is comfortable with this method of solving this differential equation, trigonometric equation. जब भी sin x और cos x के exponents का sum constant हो, तो that would be a homogeneous equation in sin x cos x. And the way to solve such question is कि पहले पूरी equation को cos x से डिवाइड कर दो, कंसिडरिंग cos x would not be 0. अगर यहाँ हमें कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाता था जिसमें cos x 0 होता, तो हमें उस सोल्यूशन को एलिमिनेट करना होता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम करा है कि cos x 0 है. That is luckily that both the solutions that we have got represent that cos x is not going to be 0. But अगर in case ऐसा कोई भी सोल्यूशन होता, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल जाता tan x is not defined in infinity, तो फिर हम उस सोल्यूशन को इग्नोर कर देते, क्योंकि उस केस में हमारा cos x 0 होने वाला होता और हमने पहले ही अज्यूम किया है कि cos x 0 नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, मेथड सॉल्व करने का क्लियर है. हम नेक्स्ट मेथड पे प्रोसीड कर सकते हैं. लेट अस डू वन थिंग, नोट दिस डाउन, और फर्स्ट और सेकंड मेथड को एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिए, फिर हम थर्ड मेथड को पढ़ते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. The third equation which I want to show you is, let us say we have an equation of the form r is a rational function. So in terms of sin kx cos mx tan nx, let's say cot lx and equals to 0. So इस तरीके की अगर इक्वेशन हो तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? What is the standard way to solve such equation? So it is another form sin kx cos mx tan, let us say nx, okay, and cot lx. तो इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें?
द बेस्ट वे टू सॉल्व सच इक्वेशंस वुड बी, जहां तक कोशिश हो सके इसे रिड्यूस करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल अगर k, m, n और l के बीच में कहीं कोई रिलेशन बन पाए तो उस रिलेशन को यूज करिए, और नहीं हो पाता सो फिर कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज यूज करके इन सबको sin x, cos x, tan x और cot x के टर्म्स में रिड्यूस करने की कोशिश करें. ट्राई टू रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x. Okay, this is what you should basically try to do. इन सबको sin, cos, tan और cot के टर्म्स में रिड्यूस करने की कोशिश करें, और उसके बाद क्या करें, चेंज दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan x by 2. और ये कैसे करेंगे, हम जानते हैं sin x इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2. Okay, I know cos x is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Similarly, tan x is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So what is the standard way? सबसे पहले तो इसको sin x, cos x, tan x और cot x के टर्म्स में रिड्यूस किए. Either you could do this by the help of compound angle formulas or by solving sin a plus sin, by applying the formula of sin a plus sin b or cos a plus cos b. Anyway, whatever method suits and whatever you find easy, just reduce it in forms of sin x, cos x, tan x and cot x. जैसे ये sin, cos और tan के फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, immediately substitute sin x as 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. cos x को भी tan x by 2 के टर्म्स में लिखे और tan को भी tan x by 2 के टर्म्स में लिखे. ओके, क्लियर है? अब ऐसा करने से क्या हुआ समझिए. ऐसा करने से हम इस पूरी इक्वेशन को tan x by 2 के टर्म्स में रिड्यूस कर दिया है. सो नाउ व्हाट वी हैव इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan x by 2. नाउ just for a sanity or simplicity sake, let us substitute tan x by 2 equals to t. So we will get a polynomial in t और फिर उस polynomial को solve करके हम solution निकाल सकते हैं. Method clear है? नहीं भी हो तो let us solve it with the help of a question. Let us say हमारे पास एक question है cos x minus sin x into 2 tan x upon 1 plus cos x plus 2 equals to 0. This is the question that we have to solve. Okay? बताइए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि in which category of methods do this lie. See, we have a function in terms of sin, cos, tan. Okay? So it has to be, so it is a rational function in terms of sin kx, cos mx and tan nx, and what we have all the coefficients as 1. So हमारी एक स्टेप तो बीच में ही रिड्यूस होगी इन सबको sin x, cos x और tan x के टर्म्स में रिड्यूस करने की. अगर इसकी जगह सोचिए क्वेश्चन में यह होता tan 2x, तो मैं tan 2x को क्या लिख देती 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, या फिर मुझे यहाँ पे होता cos 2x, तो मैं cos 2x को क्या लिख देती 2 cos square x minus 1, और I would have had sin 3x, so it would have, I would have written as 3 sin x minus 4 sin cube x. So important है कि sin, cos, tan के coefficients को 1 कर दो. It has to be sin x, cos x and tan x. Okay, now what we have to do is next substitute cos x as 2, cos x as 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Similarly, minus 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Okay, then 2 tan x, it is 1 minus tan square x by 2, or let's say 2 minus 2 tan square x by 2 upon 1 plus upon 2 tan x by 2. Sorry, यहाँ पर भी it would have been this tan x by 2 क्या होता 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2.
मैंने ये फॉर्मूला गलत लिखा और सभी ने इसे गलत ही नोट डाउन कर लिया. एटलीस्ट यू गाइस वुड हैव करेक्टेड मी ऑन दिस. ओके, ऐसे ही जो लिखो प्लीज नोट डाउन मत कीजिए करिए. इफ आई एम समथिंग रॉन्ग एट सम प्लेस डू लेट मी नो. दिस वाज समथिंग आई कमिटेड इट बाय मिस्टेक. वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे याद आ गया. ओके, सो यहां पर हम लिख देंगे 4 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x की जगह लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 plus tan square x/2. This is equals to 0. Now let us substitute tan x/2 as t. So I have 1 minus t square minus 2t upon 1 plus t square into 4t plus 1 plus t square upon 1 minus t square. This is equals to 0, which is equals to 1 plus t square into 1 minus t square, 1 minus t square minus 2t minus t square plus t cube plus 2t cube plus 4t plus 4 plus 1 plus t square plus 4t cube plus t square plus t to the power 4 equals to 0. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा. एक काम करिए, जल्दी से इसे पहले तो रिड्यूस कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बताइए. वन थिंग दैट यू शुड वेरी इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ नाउ इज कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए. डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? either 1 plus t square is 0, 1 minus t square is 0. For positive real numbers or for all real numbers, I know 1 plus t square will not be equals to 0, but 1 minus t square would be equals to 0 when t is either 1 or minus 1. So t equals to 1 and minus 1 is excluded from our set of solutions. अगर t 1 या minus 1 आए तो हमें उसे exclude करना पड़ेगा हमारे solution से, क्योंकि I know for this our denominator would be 0 and hence the equation would be undefined. जल्दी से मुझे बताइए यहाँ से क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे. किसी ने सॉल्व किया? इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद पावर 4. जल्दी से मुझे बताइए इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस आने वाले हैं. वेरी क्विकली, किसी ने सॉल्व किया? ओके, व्हाट डिड यू गेट एज सॉल्यूशंस? आपको मिला t इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड t इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. ओके, क्या सभी को ये मिल रहा है इसका सोल्यूशन? ये कह रहे हैं इसका सोल्यूशन है t इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. क्या सभी को इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन मिल रहा है? आपको भी यही मिला. ओके, सो परफेक्ट. द सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन आर t इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, व्हिच मीन्स tan x is plus minus 1 upon under root 3. Tan x by 2 is plus minus 1 upon under root 3. 1 upon under root 3, which is equals to x by 2 is n by plus pi by 6 and n pi minus 6. So n pi plus minus 6 is x by 2. So 2x is 2n pi plus minus pi by 3. ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. क्लियर है सभी को? सो अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन हो विच इज इन द फॉर्म ऑफ sin kx cos mx एंड tan nx, तो उसे इस तरह से सॉल्व करना है. सबसे पहले वी हैव रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ sin x cos x tan x. एक बार रिड्यूस कर लिया, फिर हमें इस पूरी इक्वेशन को tan x by 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग दीज 3 फॉर्मूलाज. क्लियर है सभी को? नाउ इसी का एक और स्पेशल केस देखते हैं. सो बाय द वे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूं. शैल आई इरेज इट ओनली? एटलीस्ट कैन आई इरेज दिस साइड ऑफ द बोर्ड? ओके,